Good morning. Slides दिख रही है? Yes, sir. Okay. So we have learned cryptographic primitives yesterday. That is hash function. What are the different properties of hash function? So two things we will be learning: the hash function and the digital signature, so that the sender who is sending the message cannot deny it. Non-repudiation should not be done. Okay. तो hash function हम लोग discuss कर रहे थे. Hash function के लिए हमने क्या बोला? It takes थोड़ा सा 2 मिनट रिवाइज कराती हूँ, so that अभी hash function complete हुआ नहीं है ना. तो if there is a message m, and for that we need to get fixed size output, that is a hash of that message. ठीक है. तो that we use in mostly usually use SHA-256. For that we get fixed size output, that is 256 bits in blockchain. Okay, so output, that is hash of message m, we call this as a message digest. है ना. एंड दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज दैट डिटर्मिनिस्टिक, इट इज डिटर्मिनिस्टिक, कोई भी रैंडमनेस नहीं है इसमें. कोई किसी भी मैसेज का कोई भी हैश वैल्यू आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट. SHA-256 से आप जब भी उस मैसेज को आप encrypt करोगे, या you can say if you calculate the hash value of that message, you will always get the same value. So there is deterministic value we will be getting. There is no other, there is no randomness in that. ठीक है, deterministic. Then collision free, that if two messages, if m1 and m2 are not equal to each other, so their hash values are also not equal to each other. And if their hash values are equal, that means messages are also same. So that is collision free. There is no collision between. Hiding, information hiding. Like if you get a hash value of a message from m, if you are getting hash of m, this using this hash value you cannot get back your message again. So you are actually hiding the original message. इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवलेंचे इफेक्ट. एवलेंचे इफेक्ट किसको कहते हैं? अगर m में कुछ भी चेंज होता है और ये m प्राइम बनता है, देन दिस, या m डैश समथिंग, तो वो उसका हैश वैल्यू चेंज हो जाने वाला है. आउटपुट में भी उतना ही चेंज आने वाला है. इसी को हम लोग एवलेंचे इफेक्ट बोलते हैं. देन पजल फ्रेंडली, द फोर्थ, थर्ड वन हाइडिंग, एंड देन फोर्थ पजल फ्रेंडली. पजल फ्रेंडली मीन्स हमने देखा है ब्लॉकचेन के बिटकॉइन में जो प्रूफ ऑफ वर्क यूज हो रहा था, वेयर दिस हैश फंक्शन इवेल्युएशन और कंप्यूटेशन इज वेरी पजल फ्रेंडली. देयर मैंने कल आपको हैश फंक्शन से वो करके भी दिखाया था, जिसमें हम नॉन्स वैल्यू के साथ उसको message is concatenated with the nonce value, and then hash will be applied to get the hash value, so that that nonce value cannot be determined easily, because for each nonce value attacker needs to uh, find attacker needs to concatenate it with the main message and then get the hash value, and that hash value should match with the given one. है ना. तो अटैकर को बहुत समय लगेगा उसमें. ये हम लोगों ने बात की थी कल. ठीक. तो ये जो k है, दिस k इज वही नॉन्स वैल्यू. ठीक है. देन कॉलिजन फ्री के बारे में हमने बात की, जो भी मैंने बोल दिया. हाउ डू वी गारंटी? तो ये पिजन होल प्रिंसिपल से हमने बर्थडे पैराडॉक्स के बारे में बात किया था, कि अगर लीप ईयर हुआ और वी आर गेटिंग 366 रैंडम पर्सन, मे बी देर आर 2 पर्सन हु आर शेयरिंग द सेम बर्थडे. ठीक है. तो उसके लिए गारंटी हम कैसे दे रहे थे? इफ वी आर हैविंग n बिट्स ऑफ आउटपुट, तो अटैकर नीड्स टू परफॉर्म 2 power n by 2 hash operation randomly to just find the
2 मैचिंग आउटपुट्स विद द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.9, मतलब 98% से ऊपर उसको अगर चाहिए तो, ठीक है। तो अगर हम 256 बिट का हैश फंक्शन ले रहे हैं तो n/2 इज 128, तो टोटल 2 पावर 128 हैश ऑपरेशन हमको लगेंगे। एंड टू डू दैट हैश कंप्यूटेशन, to do that hash computation, it takes 1 microsecond. It takes only 1 microsecond, but it will need 10 power 25 years to do that thing. Okay? So it is very complex, but if you have that computing power, you can, but it is very tedious task. ठीक है, तो हम नाउ जो हम लोग बोल रहे हैं कि m में हम हैश ऑपरेशन परफॉर्म करके वी आर गेटिंग सम मैसेज डाइजेस्ट d. This message digest is nothing but a hash value of the message m. यहां मुझे ये नहीं लिखना चाहिए, हैश अप्लाई किया तो अब ये h ऑफ m ही है, दैट इज वी आर टेकिंग एज हैश, तो ये हैश एज अ मैसेज डाइजेस्ट। तो ये वही चीजें लिखी हुई है, लास्ट लाइन जो लिखी है उसको फिर से रिवाइज कर लो। दिस इज एफिशिएंट बिकॉज द साइज ऑफ द डाइजेस्ट, देखो आप बोल रहे हो कि जो हैश वैल्यू होगी दैट इज ऑफ 256 बिट्स, है ना, और उसको भी हमने देखा था कि 64 कैरेक्टर हैश अगर हम उसमें रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में तो वी गेट 64 कैरेक्टर्स, ठीक है, 4 बिट्स टू ईच। तो एक हैश वैल्यू को रिप्रेजेंट करना या स्टोर करना वुड बी इजी और टेक्स लेस स्टोरेज देन द ओरिजिनल मैसेज, राइट, तो वो कम स्टोरेज लेगा, इसलिए हम हैश को एज अ मैसेज डाइजेस्ट यूज कर रहे हैं ब्लॉकचेन में, ठीक। ये साइट जो हमने देखा था, आज भी देखेंगे। एंड देन इंफॉर्मेशन एक्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी थी उसको हम लोगों ने देखा था इस डायग्राम के थ्रू कि अलाइज इफ उसने एक हैश वैल्यू, ये जो उसका मैसेज m है विद इट्स पब्लिक की, इसने इसका हैश वैल्यू क्रिएट किया और ये हैश वैल्यू विद इट्स अलोंग विद इट्स मैसेज एंड पब्लिक की सेंड इट टू द बॉब टू वेरीफाई। अब बॉब क्या करेगा, इस मैसेज में सेम हैश फंक्शन लगाएगा इफ दैट हैश वैल्यू इज मैच विद द हैश वैल्यू सेंड बाय द एलाइज is same, तो verification has been done. There could be a chain of verification, मतलब बॉब के बाद जेन भी कर सकता है और कोई भी वेरीफाई कर सकता है, तो वेरिफिकेशन कैन बी डन इन अ चेन मैनर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन हाइड करके और हैश वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बिफोर कमिटिंग एनी ट्रांजेक्शन। और लास्ट प्रॉपर्टी थी पजल फ्रेंडली, जो हमने बात की कि जो हमने देखा था कि एक मैसेज है, मैसेज के साथ नॉन्स वैल्यू हम डाल रहे थे, तो जो भी हैश जनरेट हो रहा था दैट शुड हैव सम कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट हम क्या दे रहे थे कि लीडिंग 20 होना चाहिए, लीडिंग 30 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, लाइक दैट, ठीक है, साइट में मैंने करके आपको दिखाया था। सो दिस हैश वैल्यू कंप्यूटेशन इज पजल फ्रेंडली। तो these are the 4 properties that you should know, it is very important, अगर आप नोट कर रहे हैं तो लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। देन अगर अब हम हैश फंक्शन को ही एज अ मैसेज डाइजेस्ट ले रहे हैं तो उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे। टू कंस्ट्रक्ट द बिटकॉइन ब्लॉकचेन वी हैव यूज्ड SHA 256 देयर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिक्योर हैश एल्गोरिदम, और 256 डिनोट्स द नंबर ऑफ आउटपुट बिट्स, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ SHA 2, a set of cryptographic hash function designed by NSA, ठीक है। 256 एल्गोरिदम की कुछ प्री प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी, ये भी हमने कल बात की थी कि जो भी मैसेज है वो मैसेज का जो साइज है दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 512 बिट्स, अगर वो नहीं है तो वी नीड टू पैड दैट मैसेज विथ सम अदर बिट्स 1 और 0, तो वी अपेंड 1 फर्स्ट एट द एंड ऑफ द मैसेज एंड फिर जितना हमको आगे करना है उतने जीरोज हम लगा देते हैं, like append k 0 bits where k is the smallest non-negative solution to the equation, तो l is the number of bits of the message m, हमने 1 ऐड किया तो एक बिट और बढ़ गया और प्लस k करके हमारा टोटल 448 बिट बना, मॉड 512 करेंगे तो डेफिनेटली विल इट इज मल्टीपल ऑफ 512, ठीक है। तो 64 bit block which is equal to the number L written in binary, the total length gets divisible by 512, तो हम क्या कर रहे हैं, 512 bit block जो है उसको हम n messages में we partition the message into n blocks, 512 bit blocks, ठीक है।
तो ऐसे अगर हम लोग, जैसे हमने कल बात की थी, अगर 1024 बिट्स हुए आपके आउटपुट में, तो कितने बिट, कितने मैसेज में डिवाइड होगा या कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? M1 और M2। इफ 512 बिट्स में हमको डिवाइड करना है तो डिवाइड बाई 2, देख लो आप 512 ही आएगा, तो 2 में। वहीं पे 2048 हुआ तो 4 मैसेजेस, 4 पार्ट्स में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? Once you have divided a message into 512 bits, that message is again, that, sorry, message nahi, block or part or partition, that partition is again divided into sub blocks, and that sub block is of 32 bits. ठीक है, तो 16 32 बिट्स के ब्लॉक्स बनेंगे फॉर 512 बिट मैसेज और ब्लॉक। ठीक है, तो ये डिवाइड हुआ 32 बिट में। यही बात कर रहे हैं हम कि ये प्री प्रोसेसिंग हमको करनी पड़ेगी। नाउ वी आर अप्लाइंग दिस SHA 256 बिट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, then merging the hash value of these two and then making these two makes a Merkle tree, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग शायद यहीं तक लास्ट कल पढ़े थे। ठीक है, तो SHA 256 algorithm, the message blocks are processed one at a time, start with a fixed initial value of H0, sequentially compute H, जैसे अगर मुझे H1 निकालना है तो H1 के लिए I should know I-1, that is 0, plus C message of 1, जो भी मैसेज वो 512 बिट का है या 32 बिट का है वो, ठीक है, सॉरी, डिवाइड मल्टीप्लाइड विथ H0। तो जो भी हैश वैल्यू आई है H0 की, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द कंप्रेशन फंक्शन ऑन दैट मैसेज एंड देन it gets added with the hash value of calculated new one। ठीक है, और जो फाइनल बनेगा वो बनेगा आपका H1, हैश वैल्यू ऑफ द मैसेज और द ब्लॉक M1। ठीक है, तो मतलब आप देख रहे हो ये इनिशियल वेक्टर हमने लिया, ये दिस इज H0, this is H0 combined with the compression function and with the message and calculated H1, and this H1 going into sorry, जो भी इसमें आया that is going into this and so on। तो जो फाइनल मेरा उस पूरे मैसेज का हैश फंक्शन होगा which is known as message digest फाइनल। तो ये इस तरीके से आपका एक मैसेज का हैश फंक्शन कैलकुलेट होता है। ठीक है, now we should learn what are the different patterns of hashing data, what are the different way you can do this hashing। अभी तो हमने ये एक नॉर्मल सी चीजें देखी। with this how many other patterns that we can do? So independent hashing, repeated hashing, combined hashing, sequential hashing and hierarchical hashing, ये हम 5 हमको देखना है। तो independent hashing क्या बोलता है? like if we have a message hello world, तो उसमें हमने डिवाइड कर दिया ये स्ट्रिंग हेलो और दूसरा स्ट्रिंग वर्ड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये दो, इस दोनों का अगर इंडिपेंडेंट हैशिंग करेंगे तो इसका आया ये और वर्ल्ड का ये। दैट मीन्स इफ वी आर डिवाइडिंग आवर ब्लॉक्स इनटू सब ब्लॉक्स, हर एक ब्लॉक का अलग अलग हैश हम निकाल रहे हैं। ठीक है, जो अभी हमने देखा 16 ब्लॉक्स सब ब्लॉक्स बनेंगे, जो 16 सब ब्लॉक्स बनेंगे दैट 16 सब ब्लॉक्स का इंडिविजुअल हैश आएगा और हम लोग उसको इंडिपेंडेंट रखेंगे, किसी का किसी पे डिपेंडेंसी नहीं कि M1 विल बी कैलकुलेटेड विद द M0। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा भी किया जा सकता है। तो इट इज, दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट हैशिंग। ठीक है, रिपीटेड हैशिंग, अभी जैसे यहाँ पे ये जो लिखा है आप देख रहे होगे, इसमें सिर्फ 8 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। जब यहाँ पर हम लोग निकाल रहे थे हैश फंक्शन कैलकुलेशन कर रहे थे, आपको वेबसाइट दिख रही है? ये 64 कैरेक्टर का आपको SHA 256 का इसका हैश फंक्शन दिखा, हैश वैल्यू दिखा, सॉरी हेलो का दिख रहा है, हैश फंक्शन .html वेबसाइट। यस सर। ओके, तो इसमें देखो आप 64 कैरेक्टर आ रहा है, लेकिन वहां पर क्या मेंशन है? ओनली 8। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ओनली 8 भी हम लोग देख सकते हैं, या तो इनिशियल यही 48, इनिशियल 8 को अभी ले सकते हो, ये हो गया 8, ऐसा भी ले सकते हो। अदरवाइज इसने अलग से एक दिया भी है हैशिंग निकालने के लिए, लाइक हेलो अगर मैंने लिखा तो इट विल कैलकुलेट गिव्स द आउटपुट ऑफ
8 कैरेक्टर, ठीक है। तो यही 185 F यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर, ठीक। वैसे वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी मार्क का अगर आप निकालोगे it will also give the same 514B6। ये फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स हैं 256 बिट के हैश वैल्यू के, ठीक है। तो जस्ट टू शो यू। देन रिपीटेड हैशिंग मतलब ये दूसरा तरीका हुआ, हम हैशिंग पैटर्न परफॉर्म कर सकते हैं कि सबको एक साथ करें। रिपीटेड हैशिंग मतलब हैश वैल्यू का भी हैश निकाल लिया, ठीक है। तो जैसे ये हेलो वर्ड लिखा हुआ है समटाइम्स देर इज अ चेंज, क्योंकि हो सकता है वो 256 से निकाल रहे हो। तो ये इसका ये आया, क्या ये मैच करता है? यस, ये तो मैच कर रहा है। अब ये आगे जो निकाल रहा है वो टोटल 256 बिट से निकाल रहा है कि कैसे निकाल रहा है, दैट वी डोंट नो, बट हम ऐसे निकाल के देखते हैं। आई थिंक इट इज, हाँ सेम, ठीक है। तो आपने देखा हेलो वर्ल्ड का जो हैश वैल्यू आया था, दैट हैश वैल्यू इज अगेन गिवन एज एन इनपुट एंड the same hash function has been applied into that input hash value, and then we get the we get this hash value। तो ये repeated hashing है, that we are performing the hash function repeatedly। तो ये भी एक पैटर्न हो सकता है, टाइप हो सकता है काम करने का, हैशिंग परफॉर्म करने का, ठीक। देन थर्ड वन, दैट इज टाइप्स ऑफ हैशिंग। टाइप्स ऑफ हैशिंग में हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड हैशिंग की बात हो रही। कंबाइंड हैशिंग मतलब जो अभी हम लोग देख रहे थे वही, जो ये थोड़ी देर पहले किया। ये 7583 कैसे आया, हेलो वर्ल्ड लिखा था सिंपल, तो ये मेरे को सेम मिला जो हम लोग देखते ही आ रहे हैं, ठीक है। ये कंबाइंड हैशिंग हम करते आ रहे हैं, सब पूरे कंटेंट का एक साथ हैश निकाला, तो दैट इज कंबाइंड हैशिंग। इंडिपेंडेंट हैशिंग एक पर्टिकुलर फ्रेज वाइज हमने डिवाइड कर दिया, तो वो इंडिपेंडेंट हैशिंग हो गया। रिपीटेड हैशिंग, हैश का भी हैश निकाला, दैट इज रिपीटेड हैशिंग। सो ये कंबाइंड हैशिंग। एंड फोर्थ वन इज सिक्वेंशियल हैशिंग। सिक्वेंशियल हैशिंग क्या बोल रहा है, पहले आप फर्स्ट फ्रेज का निकालिए hash value, and whatever you get, combine that hash value with the another phrase and then get the new hash value, maybe like this। let's see same मिलता है क्या हमको। जैसे कि hello लिखा हमने, तो ये हमको मिला, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर वर्ल्ड के साथ में इसको मैच कर दिया, मतलब फिट कर दिया, मतलब कॉन्कैटिनेट कर दिया। एंड देन देखो यही तो बोल रहा है, हेलो का ये आया था 185, ये देखो 18558, उसको इसके साथ कंबाइन करो। अब नाउ कंबाइन करना कैसे है, पहले आपको हैश वैल्यू लिख, अगर आप पहले हैश वैल्यू लिखते हो फिर दूसरा फ्रेज लिखते हो, यू विल गेट अनदर हैश फंक्शन, हैश वैल्यू। अगर आप हैश वैल्यू को बाद में लिखते हो, पहले फ्रेज लिखते हो, है ना, मतलब मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ फिर अपना हैश वैल्यू ये 185F8DB3 ऐसा लिखती हूँ, आई विल गेट 1 हैश वैल्यू। बट अगर वहीं पे मैं ऐसा लिखती हूँ, पहले मैंने ये लिख दिया 185F8DB3 और फिर लिखा वर्ल्ड, ये मुझे अलग हैश वैल्यू देगा। इवन इफ आई पुट स्पेस इन बिटवीन, मुझे अलग हैश वैल्यू देगा। इफ आई डोंट पुट एनी स्पेस इन बिटवीन, डायरेक्ट कॉन्कैटिनेशन है, तो ये अलग हैश वैल्यू देगा। इट डिपेंड्स, तो जरूरी नहीं है मेरे को अभी ये जो लिखा हुआ है ये अब कैसे करके लिखा है ये मुझे पता नहीं, बट व्हाट वी अंडरस्टूड सिक्वेंशियल हैशिंग वो मैं आपको बता रही हूँ, देख लेते हैं। यस सेम आ रहा है 5795। इसका मतलब ये कि इन्होंने भी जो कॉन्कैटिनेट किया है वो ऐसे ही किया है, पहले फ्रेज लिखा है, फिर एक स्पेस दिया है और उसके बाद हैश वैल्यू दिया। अगर अभी देखो मैं यहाँ पे से स्पेस हटा देती हूँ, अगर मैं स्पेस हटा देती हूँ तो ये मेरी वैल्यू आई थिंक चेंज हो गई 5947, यस ये चेंज हो गई, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से कॉन्कैटिनेशन हो सकता है, दैट मेथड यू शुड नो वॉट एवर यू आर अप्लाइंग, बट दिस इज अ क्या, सिक्वेंशियल हैशिंग, दिस इज द फोर्थ वन। इज इट क्लियर? इंडिपेंडेंट हैशिंग हमने पढ़ा, रिपीटेड हैशिंग भी देखा, कंबाइंड हैशिंग द मेन वन, ओरिजिनल वन, एंड देन सीक्वेंशियल हैशिंग, एंड द लास्ट वन इज हायरार्किकल हैशिंग। हायरार्किकल हैशिंग में क्या बोल रहा है कि हायरार्की आप एकदम टॉप
बॉटम टू अप हम जाएंगे। बॉटम में हमारे क्या है, सारे फ्रेजेस को आपने अलग अलग ब्लॉक्स में रख लिया है, हर एक फ्रेज का एक हैश वैल्यू निकाला है। ये देखो, हेलो का अलग निकाला, इसका अलग निकाला, देन दोनों को कॉन्केटिनेट किया अगेन। अब यहाँ पर भी कॉन्केटिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। लेट्स डू इट। ओके, अब यहाँ पे मैं ये 8 कैरेक्टर्स को लेके कर रही हूँ, हो सकता है उन्होंने 256 बिट को लिया हो। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये ऐसा दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से हैश निकाला। लेट्स सी क्या आ रहा है। 8 भी है, समथिंग डिफरेंट आई थिंक। यस, समथिंग डिफरेंट मे बी। पूरा 256 जो मतलब 64 कैरेक्टर है उस पे हुआ होगा दोनों का, इसलिए वो डिफरेंट आ रहा है। इट मे बी अ स्पेस इन बिटवीन, इट मे बी समथिंग एल्स, कॉम्बिनेशन का डिफरेंट होगा। उसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, बट वी विल गेट सम हैश वैल्यू दैट विल डिफर। यू शुड नो हाउ यू आर कंबाइनिंग ऑल द हायरार्किकल hashes. ठीक है, so these are the different types of hashing. Did you get that? This is important one. Types of hashing. hmm? किसी को नहीं समझ आया? हम्म, आया कि नहीं समझ में, कि कोई सुन ही नहीं रहा है? यस मैम, आ गया समझ। आया समझ? यस मैम। तो बस तुमको ही समझ में आता और किसी को नहीं आता? हाँ, okay, so next topic is hash pointer. हैश पॉइंटर का मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग पूरा हैश वैल्यू से ही कर रहे हैं, एंड देयर इज अ ब्लॉक चेन ऑफ ब्लॉक्स, तो देयर मस्ट बी हैश पॉइंटर एज वेल, एज वी already understood in the introduction part. So cryptographic hash pointer, often called hash reference, is a pointer to a location where some information is stored. Yes, this is a hash pointer which is pointing to a location where the actual data is stored. That data could be anything, any information could be. It is, है ना? Maybe the hash of the information is stored there. Here, hash of the information हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? So with the hash pointer, we can retrieve the information. If we have this hash pointer, we can retrieve the information. As we know, pointer actually points to the location in the memory where some data is stored. That data may be useful for you. Then not only you can retrieve the information, but also you can check whether the data has been modified or not, है ना? ये कैसे चेक करोगे? बाय कंप्यूटिंग द मैसेज डाइजेस्ट एंड देन मैचिंग द डाइजेस्ट विद द स्टोर्ड हैश वैल्यू। लाइक इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे मैसेज है, या फिर मान लो यहाँ पर भी हैश वैल्यू है ऑफ अ मैसेज, एंड यू हैव अ पॉइंटर टू अ लोकेशन वेयर द हियर इज इट इज अ मैसेज, और जो पॉइंटर आपके किया वहां पे हैश वैल्यू है, ठीक है? तो आप इस मैसेज का हैश कैलकुलेट कर सकते हो और उसके मैच कर सकते हो क्या ये हैश वैल्यू सेम है कि नहीं है। ये एक तरीका हो सकता है। या फिर यू विल हैव हियर इन द डेटा पार्ट, आपके पास एम डेटा हो और मैसेज डाइजेस्ट भी हो, मतलब हैश वैल्यू भी हो। और जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर हैश वैल्यू है, मतलब ऐसे लिखते हैं, हैश वैल्यू है एंड द पॉइंटर, इट इज जस्ट लाइक अ लिंक लिस्ट, राइट? इट इज पॉइंटिंग टू अ location. It has the data itself and a pointer to a location which contains the message and the hash value of it. तो आपके पास हैश वैल्यू है यहाँ पर, आप जब वहां गए तो यू कैन जस्ट परफॉर्म द हैश ऑन दिस मैसेज एम,
and check whether it is matching with the stored hash value or not. If it is, तो फिर तो सही है, देयर इज नो चेंज, क्योंकि आपको पता है एक बिट का भी अगर चेंज होगा तो देयर विल बी टेम्पर्ड चेंज इन द डॉक्यूमेंट और मैसेज. ठीक है, तो हैश पॉइंटर का हम लोग यूज करते हैं ब्लॉकचेन में, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं. इट इज जस्ट लाइक दिस, hash of the data and a pointer which is pointing to a hash pointer, जिसको हम लोग कह रहे हैं, which is pointing to the data. It actually reminds us the linked list. ठीक है, तो लिंक लिस्ट में हम लोग क्या होता है, डेटा हमारा है और डेटा में ही हम कुछ भी रख सकते हैं, या तो हम मैसेज रखें और हैश वैल्यू भी रखें, या फिर सिर्फ हैश वैल्यू रखें, मैसेज यहाँ पर रखें. तो सो दैट वी कैन परफॉर्म द हैश फंक्शन एंड गेट द एंड चेक वेदर द हैश वैल्यू सेम और नॉट. दोनों तरीके से हम कर सकते हैं इसको, बट हैश पॉइंटर इज रिक्वायर्ड हियर. ठीक है, देन टैम्पर डिटेक्शन यूजिंग हैश पॉइंटर. अब अगर हमारे हैश में कुछ चेंज हो रहा है तो वी शुड गॉट टू नो अबाउट इट. लाइक दिस, देयर इज अ वर्ड, हेलो वर्ड हमारा लिखा हुआ है जिसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है. ठीक है, दिस इज अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू दिस मैसेज. यहाँ पे एक मैसेज है और दिस पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग हैव द हैश वैल्यू ऑफ दिस मैसेज. तो हम हैश फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो जो भी हमारे पास इसका हैश वैल्यू है दैट शुड मैच विद द हैश वैल्यू स्टोर्ड हियर. अगर मैच हो रहा है दैट मीन्स देयर इज नो टेम्पर इन द मैसेज. अब अगर किसी ने ये एक्सक्लेमेटरी मार्क को चेंज कर दिया क्वेश्चन मार्क में, तो देयर इज अ चेंज इन द मैसेज. हैश वैल्यू तो चेंज होनी ही है, जैसे कि ये जिगजैग से ये बताना ही चाह रहा है कि देयर इज अ चेंज, बट हमारा रेफरेंस यही है, पॉइंटर यही है जो पॉइंट कर रहा है इस मैसेज को, बट मैसेज में चेंज हो गया है. तो जब इस मैसेज पे वही हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट डिफरेंट हैश वैल्यू. And if we get different hash value which is not matching with the hash value which is there, or maybe here only with the message, we got to know that there is a change or there is a some tamper in the tamper detected in the message. ठीक है, तो दूसरी बात, पहली बात तो ये हो सकती है कि मैसेज में चेंज हो, दूसरी बात ये हो सकती है हैश वैल्यू में चेंज हो जाए. ठीक है, लाइक मैसेज में तो चेंज किया ही है, साथ साथ हैश वैल्यू में भी चेंज कर दिया है यहाँ पर. तो ये मैसेज जब वेरीफाई होगा तो ये मैसेज तो वेरीफाई हो जाएगा, यस द हैश वैल्यू विच इज स्टोर्ड हियर इज मैचिंग विद द व्हेन वी अप्लाई द हैश फंक्शन ऑन द मैसेज विच इज स्टोर्ड देयर, इट इज मैचिंग. बट आपको पता है ब्लॉकचेन में इस हैश की वैल्यू इसके बाद वाले ब्लॉक के पास होगी, प्रीवियस हैश वाले जगह पर, उससे मैच नहीं हो पाएगी. समझ आ रहा है ना? ये ब्लॉक, इसका जो भी हैश है दैट इज स्टोर्ड देयर इन द प्रीवियस हैश लोकेशन ऑफ दिस ब्लॉक. तो आपने इसमें तो चेंज कर दिया, इसको वेरीफाई भी कर दिया, लेकिन ये हैश वैल्यू इससे मैच नहीं करेगी, विल नॉट मैच विद दिस वन. तो ये जैसे ही होगा इट इज नॉट मैचिंग विद दिस वन, तो फिर आप क्या बोलोगे, सब कुछ इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ से लेके आगे के जितने ब्लॉक्स होंगे सारे इनवैलिड हो जाएंगे. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन. ठीक है, तो अगर आपको यहाँ चेंज करना है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा इसके आगे जितने ब्लॉक्स हैं एडेड सभी में जाके चेंज करना पड़ेगा. तो इफ यू हैव दैट कंप्यूटिंग पावर, इफ यू हैव दैट टाइम कंज्यूमिंग, मतलब उतना टाइम आप दे सकते हो, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट. आप उसको टेम्पर कर सकते हो उस ब्लॉक के डेटा को और किसी को पता भी नहीं चलेगा. राइट, तो इट इज अ टफ टास्क और टेक्स टाइम. ठीक है, तो ये है आपका टेम्पर डिटेक्शन यूजिंग हैश पॉइंटर. अगर इसको एक रियल लाइफ एनालॉजी से देखें तो वो क्या हो सकता है, लाइक अगर आप, जैसे हम लोग किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं या तो आपको अपना कुछ बैग अगर हमारे पास है, लाइक बैकपैक लेके अगर आप घूम रहे हो तो आपको बाहर लॉकर में रखना पड़ता है ना. तो आप रखते हो और वो कुछ टोकन आपको देता है, या मे बी चलो वो एक लॉकर जैसा है जिसमें आपने अपना बैकपैक डाल दिया और उसने आपको की दे दिया और उस की में नंबर लिखा हुआ ये. जब आप उसको की वापस करोगे तो वो नंबर देखेगा और उस नंबर के लॉकर को खोलेगा और जो भी अंदर होगा वो आपको देगा. तो सेकंड वाला, तो ये तो हो गया नॉर्मल, ये फर्स्ट वाला केस कि आपने जो रखा वही आपको वापस मिल रहा है. दूसरा केस ये हो सकता है, ये जैसे यहाँ पे आपने डेटा चेंज कर दिया है, मतलब आप बैकपैक रख के गए, आपका काम हुआ, आप वापस आए, की आपने दिया, तो वो बैकपैक की जगह आपको हैंडबैग दे रहा है, जो भी अंदर आपने रखा था वो चेंज हो गया है.
इट वॉज समथिंग इज देयर बट कहीं मेंशन ही नहीं था कि क्या क्या था अंदर, ठीक है। तो अगर आपके की में लिखा होता कि 5 नंबर का लॉकर है एंड बैकपैक, तब तो फिर ठीक है, तो ये वाला केस होता, ठीक है। बट अगर बैकपैक बैकपैक से ही रिप्लेस हो जाए, लाइक आपने रेड कलर का बैकपैक रखा था और आपको ब्लू कलर का बैकपैक मिल रहा है, लाइक दिस द थर्ड वन, तो फिर दिक्कत है। तो उसके लिए फिर अलग हमको सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, जो हम ये बात कर रहे हैं कि ये प्रीवियस हैश की वैल्यू हम स्टोर करते हैं, ठीक है, टेम्पर डिटेक्ट करने के लिए। सो दिस analogy can help you to understand this temper detection using hash pointer. So we should maintain the hash pointer. तो ये कल मैंने आपको दिखाया था करके, मेकिंग टेम्परिंग अ हैश चेन कंप्यूटेशनली चैलेंजिंग, है ना। जैसे जैसे नॉन्स वैल्यू, अगर आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया कि आउटपुट शुड कंटेन द लीडिंग 3 zeros, देन आप देखो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अभी जीरो हो कैसे रहा है, डेटा है हेलो, हेलो के आगे आपने ऐड किया नॉन्स वैल्यू, ये डेटा है हेलो, नॉन्स वैल्यू आपने जीरो ऐड की, जीरो ऐड करने पे जो भी हैश वैल्यू आई, क्या ये मेरे रेस्ट्रिक्शन को ये हैश वैल्यू आई, is it fulfilling my restriction? If it is fulfilling my restriction, then it's okay. What is the restriction? Leading 2 zeros होने चाहिए हैश वैल्यू में, अगर नहीं मिला तो फिर आप क्या करोगे, फिर हेलो में क्या करोगे, एक दूसरा नॉन्स वैल्यू लगाओगे 1, फिर एक हैश वैल्यू मिलेगा, क्या वो रेस्ट्रिक्शन फुलफिल कर रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन जितना ज्यादा टाइट होगा, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ज्यादा समय लगेगा टू गेट द एक्चुअल हैश वैल्यू बाय द अटैकर, है ना, चैलेंजिंग होगा टू कंप्यूट दैट, ठीक है। तो ये वही लिखा है। तो अगर हमारा 3 लीडिंग जीरो वाला रेस्ट्रिक्शन था, तो उस केस में आप देख रहे हो नॉन्स वैल्यू 614 यहाँ पे आया, तो हेलो के साथ यहाँ हेलो वर्ड लेके चल रहा है, आई एम जस्ट टेकिंग हेलो, तो 614 आपने लगाया, तब आपको क्या मिल रहा है, 3 लीडिंग जीरोस मिल रहे हैं। तो यही मैंने आपको कल करके दिखाया था, आई थिंक कहाँ चला गया, इसमें दिस वन, इसमें आप यहाँ पे जाके हैश पजल में जाके देख सकते हो, यहाँ हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो जब जीरो किया तो जीरो को से कॉन्केटिनेट होके एक हैश वैल्यू मिली, बट ये रेड में दिखा रहा है बिकॉज द रेस्ट्रिक्शन लीडिंग जीरो आना चाहिए, जो नहीं आया है, ठीक है। तो अगर मुझे एक एक करके देखना है, तो ये एक एक करके पहले आप देखोगे विद दिस रेस्ट्रिक्शन। अब वो रेस्ट्रिक्शन भी आपको नहीं पता है कि वो रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया हुआ है, तो फिर आप फिर दूसरा कुछ करोगे, फिर रेस्ट्रिक्शन चेंज करोगे, फिर सारा कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, फिर रेस्ट्रिक्शन चेंज करोगे। तो जितना ज्यादा, अभी देखो अभी 1 है, तो मैंने ये कल किया था सॉल्व हैश पजल, तो ये आपको निकाल के दे रहा है 3 में आ रहा है, बिकॉज यू हैव पुट ओनली स्मॉल रेस्ट्रिक्शन, एकदम इजी रेस्ट्रिक्शन लगा है। अब यहीं पे मैं इसको 2 कर देती हूँ, 2 करने पे ये रेड हुआ। अब मैं सॉल्व करूं तो अब बता रहा है 57 पे मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। अब जो अटैकर, उसको ये नहीं पता ये नॉन्स वैल्यू क्या है, अटैकर है उसको ये नहीं पता कि रेस्ट्रिक्शन क्या है, उसको सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं फिर से रिस्ट्रिक्शन चेंज करूं, आप देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। अब 3 कर दिया लीडिंग जीरो, तो अब 614 जो हम लोग इस पे देख पा रहे थे, ये 614 विथ हेलो वर्ल्ड, ये ऐसा कॉन्केटिनेट किया और तब हमको ये 0000068, ये देखो यही मिला A3C, ठीक है। अब अगर ये देखो ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा, अगर मैंने 4 डाला और फिर हैश वैल्यू कैलकुलेट की, ये 00029EA, और यहाँ पे देखो हैश वैल्यू क्या आ रही है, नॉन्स वैल्यू क्या आ रही है, देखो 256325, मतलब जैसे जैसे आप रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाओगे, इट वुड बिकम मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द अटैकर टू गेट द एक्चुअल हैश वैल्यू, ठीक है, फॉर अ डेटा। और जब तक हैश वैल्यू मैच नहीं होगी, यू आर नॉट एंश्योर दैट कि डेटा इज करेक्ट, ठीक। देखो इसमें अब समय लग रहा है, मैंने क्लिक कर दिया है लेकिन अभी तक नहीं दे पा रहा है, वो अंदर कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अब ये मिला, यहाँ पे हमको डेटा ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो लाइक दैट जैसे जैसे हम रेस्ट्रिक्शन बढ़ा रहे हैं, कंप्यूटेशन टाइम बढ़ रहा है, विद नोइंग द रेस्ट्रिक्शन, नोइंग द नॉन्स वैल्यू, कि यही होगा, यही इंटीजर वैल्यू होंगे, यहीं से स्टार्ट हो रहे होंगे, इतने ही ड्यूरेशन में, इतने ही लिमिट में होंगे, ये सब हमको पता है, तो हम कर पा रहे हैं। जहां पर वो सारी चीजें ना पता हो तो और ज्यादा टफ हो जाएगा, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे, राइट। तो ये है आपका मेकिंग, अगर आपको टेम्परनेस इसमें टेम्परिंग करना है तो हैश पजल सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
देन ये डिटेक्ट टेम्परिंग फ्रॉम हैश पॉइंटर जो मैंने आपको बताया, देखो ये जो डेटा है डी आई, ठीक, ये डी आई और ये पुराने वाले इसके पहले वाले का जो हैश वैल्यू आया, मतलब मैं इसको लेके चलती हूँ, चलो डी आई प्लस वन, ये इसका डेटा, and this contains the hash value of this block total, this total block hash का, टोटल ब्लॉक का हम लोग क्या किए, ये हम कर क्या रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, देखिए कंबाइंड हैशिंग हो रही है ना, डेटा विद द हैश वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, दोनों को मिला के आपने एक हैश वैल्यू बनाई, दैट बिकम्स द हैश वैल्यू ऑफ दिस whole block, and it has been added somewhere in the hash pointer which is pointing for this block, but it is also maintained here in the next block as a previous hash value. तो यहाँ पे हमने डी आई, ये डी आई का हैश वैल्यू रखा है। अब ये डी आई और ये डी आई प्लस वन का डेटा, ये दोनों को मिला के इसका अपना एक हैश वैल्यू आएगा, दैट वी हैव स्टोर्ड समवेयर इन द हैश पॉइंटर और एक लोकेशन में, बट इट कंटेन्स दैट प्रीवियस हैश वैल्यू इज स्टोर्ड हियर इन दिस नेक्स्ट ब्लॉक ऑल्सो। तो इस तरीके से हम हैश पॉइंटर का यूज करके हैश चेन बनाते हैं, दिस इज हैश चेन, ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो जो हमने इनिशियली पढ़ा था कि ऐसा ऐसा होता है, उसको अब डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा और बोरिंग भी लग सकता है आपको, या अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको इंटरेस्टिंग भी लग सकता है, ठीक। दिस इज अ मर्कल ट्री, क्या टाइम हुआ है? ओके, तो मर्कल ट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैश पॉइंटर्स इन अ ट्री। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, हियर देर आर 4 ट्रांजेक्शन T1, T2, T3 एंड T4, देर आर 4 ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन का आपने हैश निकाला, दैट इज H00, इसका H01, H10 और ये हो गया H11, ये 4 हैश वैल्यूज आ गई विथ ऑल दीज ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर ये H00 और H01 जो है, ये दोनों को ऐड करके आपने ये दोनों को कंबाइन किया और दोनों को कंबाइन करके हैश निकाला, दैट बिकम्स द हैश ऑफ H0, ठीक है, नेम्ड एज H0। अगेन इन दोनों का जो आपने निकाला, इन दोनों को कंबाइन करके जो हैश निकाला, ये बना H1। अब ये H0 और H1 जो है ये दोनों को कंबाइन करके फिर से आपने हैश निकाला, जो क्या बना आपका H रूट, हैश ऑफ द रूट ऑफ द ट्री, इसको हम लोग कहते हैं रूट हैश, इसी को हम लोग कहते हैं मर्कल रूट, दिस इज अ मर्कल ट्री। इस तरीके से हम हैश पॉइंटर को मेंटेन करते हैं। सो वी यूज ट्री डेटा स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज द हैश पॉइंटर्स, ठीक है, इन ब्लॉकचेन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्कल रूट, ठीक है। वहीं से हम लोग फिर कैलकुलेट भी करते हैं हैश वैल्यू कि किसका किससे एडिशन करना है, क्या कंबाइन करना है, तो ये ट्री में मेंटेन होता है। तो रूट से ही फिर हमारा स्टार्ट होता है, रूट में गए तब हमको ये पता चला है L1 कैश में क्या क्या है, किसका किसका एडिशन है, फिर वहां से L2 क्या हैश, कैश बोल रही है, L2 L1 हैश एंड L2 हैश, लाइक दैट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्कल ट्री। सो हाँ, और ये एक चीज, ये तो आपको पता ही है, ब्लॉकचेन एज अ हैश चेन। तो इसमें ब्लॉक हेडर है, हर एक ब्लॉक के पास ब्लॉक हेडर होगा, और फिर यहाँ नीचे इसका ब्लॉक का कंटेंट भी होता है, सभी के पास ब्लॉक का कंटेंट भी होगा, एंड दिस इज ब्लॉक हेडर। ब्लॉक हेडर कंटेन्स द प्रीवियस हैश, मतलब इसके पहले वाले ब्लॉक का हैश वैल्यू, नॉन्स फॉर दिस ब्लॉक, है ना, ब्लॉक हैश, इसी ब्लॉक का हैश, एंड द मर्कल रूट, कि ये हैश जो कैलकुलेट हो रहा है इस ब्लॉक का, वो हुआ कैसे, और ये रूट मर्कल पे कहाँ पर है, इसका रूट क्या है, ठीक है। लाइक दैट वी मेंटेन द ब्लॉक हेडर ऑफ एवरी ब्लॉक, दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट इज देयर। तो व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट और इंफॉर्मेशन वी स्टोर्ड इन द ब्लॉक हेडर ऑफ द ब्लॉक, वी कैन टेल दिस 4-1, ठीक है, 4 इंफॉर्मेशन वी स्टोर, ठीक है, एज अ हैश चेन। Previous hash of a next block contains the block hash value of the previous block. Likewise, you can see here. ठीक है, तो आपका अगर कोई अटैकर चेंज करता है तो वो यही चेंज कर पाएगा, इसकी सारी सारी इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है वो सारी चेंज कर दे, लेकिन वो अगर प्रीवियस हैश को नहीं चेंज कर पाएगा नेक्स्ट ब्लॉक के जो उसमें है, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर वो इनवैलिड पता चल जाएगा, टेम्पर हुआ है ये पता चल जाएगा। So this is the thing with the hash function, hash pointer, hash chain. So 3 things we have learned: hash function,
hash pointer, Merkle tree, and hash chain. This all comes under a single topic, that is hashing or hash in your unit 2. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट होता है. क्रिप्टोग्राफी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगी, ठीक है, क्योंकि अलग टॉपिक है. ठीक है, अटेंडेंस बताओ. सेक्शन ए रोल नंबर 2. Yes, ma'am. फिर 5. Ma'am, 5. Yes, ma'am. फिर 10, 12. Yes, ma'am. कौन है 10? 10 है, 12 तो है. 12. नेक्स्ट 25. Yes, ma'am. नेक्स्ट 34. Yes, ma'am. 45. Present, ma'am. 65. Yes, ma'am. 66. 64. 63. Yes, ma'am. 69. Present, ma'am. 69. 70. Present, ma'am. ओके, तो सेक्शन ए 2, 5, 12, 25, 34, 45, 65, 63, 69, 70. इसके अलावा कोई है तो बता दो. नहीं. सेक्शन बी Ma'am, 5. 5, 1 एब्सेंट. 15, 14, 18. Yes, ma'am. Ma'am, 14 present. 14 present, 18 present. 28, 33, 43, Ma'am, 37. 37. And 34 present. I'm 43. 34 present और फिर 43. 50. Present, ma'am. 59. Yes, ma'am. 60. Present, ma'am. Where is 60? Yaman. Ma'am, present. 63. 64. Present, 64. ma'am. 64. 63, 64 present. Next. 66, 69. और कोई प्रेजेंट है इसके अलावा? Ma'am, 7. 7 कौन सा? तुम तो सो के उठे हो B7. लग रहा है अक्षत अभी. नहीं मैम, क्लास के स्टार्ट से हूँ. स्टार्ट से हो? अच्छा. यस मैम. और कौन बचा? अक्षत सेक्शन बी ना? यस मैम, B7. हाँ ठीक.